Hello, my dear learners. We are here with the one-shot revision of distinguished test of functional groups in organic chemistry. We have almost all the distinguished tests today of functional groups. So, we are going to see first, take a look that which types of distinguished test we are going to cover today. Okay, so we have Lucas test, we have FeCl3 test, and the most famous one is Tollens test. We have failing solution test. Then we have carbamine one. We have Hinsberg. We have haloform test, and we have coupling reaction. Okay, so we are going to see one by one all the distinguished tests. Okay, and I hope in one video you are going to get more clarity. So whenever you get any confusion, just refer this video. So easily you can revise your distinguished test. Okay, so first we are going to start with Lucas test. So Lucas test is basically for what? Lucas test is to distinguish first degree from second degree and from third degree. Okay, so in this test, what happens when third degree alcohol reacts with Lucas reagent, it gives immediate appearance of turbidity. Okay, and the second degree alcohol reacts with Lucas reagent, it gives slow appearance of turbidity. And when ethanol, like first degree alcohol, reacts with Lucas reagent, easily no reaction appears and turbidity appears after heating. Okay, so this is distinguished test for first degree, second degree, and third degree alcohol. And then we have FeCl3 test. FeCl3 test is how you're going to distinguish alcohol from phenol. Okay, see, when you put FeCl3 in phenol, it gives violet color. Okay, but when you going to add FeCl3 in ethanol, there will be no reaction. Okay, so easily you can distinguish alcohol from phenol. Okay, the next reaction distinguish test we have, that is a tolerance test, and most of the times it has been asked in your board exam. So we are going to see what happens in that tolerance test. See, basically it is given by aliphatic aldehyde, aromatic aldehyde also, and one more acid, okay, that can also give this tolerance test reaction, that is methanoic acid. Only one acid, methanoic acid, well known as formic acid. Okay, so this tolerance test is given by aliphatic aldehyde, aromatic aldehyde, and methanoic acid. Now, if in the exam they are going to ask that how will you distinguish ethanol from propanone, or you can say propanone from propanol. Okay, so yes, easily you can give this test. Propanol is going to give this test because that comes in aliphatic aldehyde, but propanone will not give this test. Okay, so tolerance test is basically for aliphatic aldehyde, aromatic aldehyde, and one acid, that is only methanoic acid. Okay, then, and what happens here? See, how can you detect that there is a positive result? When there is a formation of silver mirror. Okay, you have performed it in your functional group test also in the lab. Okay, then the next one we have failing test
ओके, सो फेलिंग टेस्ट रिएक्शन व्हाट हैपेंस, सी फेलिंग टेस्ट याद रखिएगा, फेलिंग टेस्ट इज बेसिकली बेटा ओनली फॉर एलिफैटिक एल्डिहाइड. So means if they have asked that how will you distinguish aldehyde, or we can say okay ethanol from benzaldehyde, then you can perform this test. You cannot perform tolerance test over here, okay, because tolerance test लोगे आप तो वो दोनों टेस्ट दे देगा. टॉलेंस टेस्ट आप एलिफेटिक के लिए भी यूज कर सकते हो और एरोमेटिक के लिए भी यूज कर सकते हो, बट फेलिंग टेस्ट इज ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड. क्या मिलता है बेटा यहाँ पे आपको रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है, और इस रेड प्रेसिपिटेट से आप इसलिए जान सकते हो कि देयर इज अ पॉजिटिव रिजल्ट. सो याद रखिएगा फेलिंग टेस्ट इज ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड. Okay, then the next one we have haloform test. Okay, and in haloform we are going to see we are going to see आइडोफॉर्म टेस्ट. सी बहुत आसान आइडोफॉर्म टेस्ट और ये मेरा फेवरेट है. सी इसमें क्या होता है ना, कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ अगर आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इस तरफ आपका H भी हो सकता है, इस तरफ आपका CH3 भी हो सकता है, इस तरफ आपका कोई भी कंपाउंड, कोई भी कार्बन कंटेनिंग का ग्रुप हो सकता है, बट एक तरफ उसके अगर CH3 है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा. आइडोफॉर्म टेस्ट में बेटा हम करते क्या है, I2 और NaOH लेते हैं, ठीक है, और जैसे कि सपोज ये नॉर्मली हमारे अल्कोहल्स के लिए ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, ये भी आपके अल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे बेटा आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, सी आप I2 प्लस NaOH लोगे, रिएजेंट क्या है आपका बेटा I2 प्लस NaOH, या आप ले सकते हो NaOI2, ठीक है. तो अगर उसमें एक तरफ आपका मिथाइल ग्रुप है तो वो टेस्ट आइडोफॉर्म देगा. जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए पेंटेन 2 ओन को डिस्टिंग्विश करना है पेंटेन 3 ओन से, ठीक है, तो 3 ओन में अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ उसके बेटा क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप नहीं रहेगा. बट पेंटेन 2 ओन में आपके एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो पेंटेन 2 ओन आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, पेंटेन 3 ओन आपका आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा. आइडोफॉर्म बेटा टेस्ट का आप रिजल्ट कैसे जानोगे, येलो प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है बेटा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट का रिजल्ट आया तो आप जान सकते हो दैट इज अ पॉजिटिव रिजल्ट, मींस हैलोफॉर्म का आइडोफॉर्म का पॉजिटिव रिजल्ट है. देन द नेक्स्ट टेस्ट वी हैव सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट भी आपने लैब में परफॉर्म किया हुआ है बेटा. एसिड ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो आप एसिड को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, एसिड को आप एल्डिहाइड से, एसिड को आप अल्कोहल से, फिनॉल से कैसे डिफरेंशिएट करोगे. अगर एसिड है तो अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराया है तो ब्रिस्क इफर्वेसेंस आएगी, बुलबुले उठेंगे उस पे टेस्ट ट्यूब पे, ठीक है, तो वो आपका पॉजिटिव रिजल्ट होगा, ब्रिस्क इफर्वेसेंस. बट वहीं पे अगर आप टेस्ट देखो फिनॉल के लिए तो देयर विल बी नो एफर्वेसेंस, ठीक है, बट आपके एसिड बेंजोइक एसिड के लिए, यस बेंजोइक एसिड के लिए आपके पास ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा. तो आपसे पूछा जा सकता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बेंजोइक एसिड फ्रॉम फिनॉल, क्या टेस्ट लगा दोगे बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. ओके, देन द नेक्स्ट कार्बिल माइन टेस्ट. सी कार्बिल माइन टेस्ट बेटा आपका बाई नेम रिएक्शन है. आपको याद करने के लिए मैंने बोला था का से कार्बिल माइन अमाइन से तो क्लियर ही आपका कि अमाइन पर टेस्ट होगा. कार्बिल का क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बेटा खुद भी एक पॉइजनस सब्सटेंस है और पॉइजनस सब्सटेंस ही बनाता है आइसोसाइनाइड, ठीक है, कौन देगा बेटा, फर्स्ट डिग्री अमाइन आपका कार्बिल माइन टेस्ट देगा.
ठीक है, फर्स्ट डिग्री अमाइन। तो फर्स्ट डिग्री अमाइन में बेटा आपका ये एनिलिन भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी आपका फर्स्ट डिग्री अमाइन है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है और ये फर्स्ट डिग्री अमाइन है, यहाँ पे भी ये फर्स्ट डिग्री अमाइन है। तो फर्स्ट डिग्री अमाइन आपकी कार्बेलमाइन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो आपको पूछा जा सकता है कि इथेनामाइन और आप मिथाइल मिथेनामाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? ठीक है, या डाई इथाइल इथेनामाइन से कुछ भी पूछ सकते हैं। इथेनामाइन एंड डाई इथाइल इथेनामाइन। डाई इथाइल इथेनामाइन बेटा C2H5 NH C2H5। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश देम? सिंपल, कार्बेलमाइन टेस्ट। कार्बेलमाइन लगा दोगे बेटा, फर्स्ट डिग्री आपका कार्बेलमाइन टेस्ट देगा, सेकंड डिग्री आपका कार्बेलमाइन टेस्ट नहीं देगा। बहुत ही यू नो बैड स्मेल आती है, बहुत ही ज्यादा इसका जो ऑर्डर होता है इट्स वेरी पॉइजनस, और इसलिए हम लैब में भी इजिली इसको परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना बेटा, कार्बिलमाइन का क्लोरोफॉर्म आपने लिया है, क्लोरोफॉर्म खुद पॉइजनस है और पॉइजनस सब्सटेंस भी बनाता है, दैट इज आइसोसाइनेट। और ये टेस्ट बेटा परफॉर्म कौन करता है? फर्स्ट डिग्री अमाइन। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट भी बेटा आपका फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हिंसबर्ग में आपका फर्स्ट डिग्री अगर आप देखोगे तो जितने सी इसमें जितने आपके पास हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, उतने स्टेप्स का रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप भी होगा, सेकेंड स्टेप भी होगा। ठीक है, फिर अगर आपने सेकेंड डिग्री अमाइन ले लिया है तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होगा, उसके बाद वो इंसॉल्वेबल हो जाएगा, सेकेंड स्टेप रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन था। ठीक है, देन अगर आपने थर्ड डिग्री अमाइन ले लिया है तो थर्ड डिग्री अमाइन में बेटा एक भी हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। तो फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री एंड देन थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री 2 स्टेप्स, थर्ड डिग्री सेकेंड डिग्री में 1 स्टेप पे रुक जाएगा और थर्ड डिग्री पे बेटा नो स्टेप। ठीक है, ये हो गया आपका हिंसबर्ग। हिंसबर्ग में आपको पूछा जा सकता है बेटा कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, उसका नाम बताइए। सो दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। ये याद रखिएगा, आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, देन आ जाइए कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में बेटा ये आपको याद रखना है कि कपलिंग रिएक्शन आपका सिर्फ एरोमेटिक अमाइंस देंगे। ठीक है, अगर आपने एनिलिन ले लिया, आपने एनिलिन ले लिया, इसका डाइएजोटाइजेशन करा दो। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl लेके आपको बेटा क्या मिल जाता है? डाइएजोनियम क्लोराइड मिल जाता है, N2 प्लस Cl माइनस 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपको याद होना चाहिए NaNO2 प्लस HCl लेते हैं हम यहाँ पे, और इसकी कपलिंग करा दो। सपोज इसके सामने हम ले आए फिनॉल, तो इसका एक H इसके Cl के साथ निकल जाएगा और बाकी आपका सब जुड़ जाएगा, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका कपलिंग रिएक्शन हो गया। ये कपलिंग रिएक्शन बेटा आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? सिर्फ आपका एरोमेटिक अमाइंस देंगे, एलिफेटिक नहीं देंगे। तो आपको पूछा गया कि एनिलीन को इथेनामाइन से कैसे डिफरेंशिएट करोगे बेटा, तो आप क्या बोलोगे बेटा? कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि आप कपलिंग रिएक्शन आप यहाँ पे ये कार्बेल माइन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि कार्बेल माइन रिएक्शन आपका एरोमेटिक भी देता है और एलिफेटिक भी देता है। वहां पे आपका फर्स्ट डिग्री चाहे एरोमेटिक हो, फर्स्ट डिग्री चाहे एलिफेटिक हो, दोनों ही आपके कार्बेल माइन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बट कपलिंग रिएक्शन में आपका इट इज ओनली गिवन बाय एरोमेटिक। तो कपलिंग रिएक्शन से आप एरोमेटिक को एलिफेटिक से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो विद these slides, I hope that you have got more clarity. Okay, so see what you will have to do now. एक बार आप पूरे सारे रिएक्ट जितने भी डिस्टिंग्विश टेस्ट मैंने किए हैं इनको एक बार आप कर लेना, और इनको करने के बाद बेटा क्या करना, बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चंस निकालो सैंपल पेपर से या PYQ से। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो ये वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम डिस्टिंग्विश टेस्ट को कवर कर दिया है, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।
I hope that this particular video is going to help you a lot to do distinguished test of functional group. Okay, so bye bye. Thank you so much. Eat healthy and sleep well in your during your exam. Okay, bye bye.